شام کا وقت تھا اور آرزو کمفرٹر تانے سب کچھ بھلائی سونے میں مگن تھی، جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو، جیسے اسے کسی کا سامنا کرنا ہی نہ ہو۔ ویسے بھی آرزو خان کو نیند بہت پیاری تھی، بقول اس کی نیند ہے تو جہاں ہے۔ مزے سے خواب خرگوش کے مزے لیتے وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے سو رہی تھی، جیسے کوئی بہت ہی خوبصورت خواب دیکھ رہی ہو۔ سیلاب آ گیا، بچاؤ مجھے سیلاب! اچانک وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی، گہرے گہرے سانس لیتے ادھر ادھر دیکھا اور پھر خود پر نظر ڈالی۔ کمفرٹر بھیگ چکا تھا، شکر تھا اس کے کپڑے اتنے گیلے نہیں ہوئے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور پھر وہ خوف سے آنکھیں پھیلائے گلاس ہاتھ میں پکڑے دانیال کو دیکھنے لگی تھی، جو سرخ ناک اور سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ اسے گھور رہا تھا۔ آرزو کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ ہائے منحوس ماری آرزو، دروازہ کیسے لگانا بھول گئی تو؟ کالا منہ، تیرے نیلے پیر! وہ سامنے کھڑے دانیال کو دیکھتے دل میں سوچ کر رہ گئی، دانیال؟ ٹکڑوں میں اس کا نام ادا کرتے وہ بیٹھ کے دوسری سائڈ سے جیسے ہی اترنے لگی، دانیال نے پھرتی سے اس کا بازو دبوچا۔ بہت شوق ہے تمہیں دوسروں کو تکلیف دینے کا؟ اسے کھینچتے وہ جھٹکے سے بیڈ سے اتار گیا۔ آرزو نے اپنی بازو پر اس کی چپتی سلگتی انگلیاں پیوست ہوتی محسوس کی۔ دانیال، میں وہ… آرزو سے کچھ بولا ہی نہیں گیا، وہ جبڑے بھیجے اسے شربار نظروں سے گھور رہا تھا۔ تم اپنی حد بھولتی جا رہی ہو، تمہاری ہمت کیسے میرے کمرے میں میری اجازت کے بغیر دوسری بار انٹری کرنے کی؟ کیسے ہمت ہوئی تمہاری میری الماری کو ہاتھ لگانے کی؟ دل کرے تمہارے ہاتھ کاٹ دوں۔ وہ غصے سے پھنکارا، اس کے علاوہ اگلتے لہجے نے آرزو کو سہما کر رکھ دیا۔ دانیال نے شدت سے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ کھینچنے لگا تھا۔ دانیال سوری۔ اسے اس قدر غصے میں دیکھ کر آرزو لڑکھڑا کر بولی، اس کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ دانیال، ہاتھ چھوڑو میرا! وہ اس کی سخت گرپ سے اپنا ہاتھ چھڑوا لینا چاہتی تھی، مگر دانیال کی گرپ بہت سخت تھی، لوہے کی مانند۔ دانیال نے پلٹ کر قہر ڈھاتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی کن پٹیوں کی رگیں بری طرح سلگتی پھولنے لگی تھی۔ کندھے پر ڈالی مردانہ شال اتار کر اس نے آرزو کے بغیر دوپٹے کے وجود پر پھیلا دی۔ آرزو نے شرمندگی سے اسے دیکھا۔ وہ واپس سے اسے کھینچتا اپنے روم میں لے آیا تھا۔ واش روم کی جانب بڑھتے اس کے قدموں نے آرزو کے رونگٹے کھڑے کیے تھے۔ اسے بے اختیار ہی سرد پانی یاد آ گیا، کپ کپی سی وجود میں سمانے لگی۔ دانیال نے اسے واش روم کے فرش پر پٹخا۔ آرزو نے لب بھینچے اسے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ ضدی خودسر لڑکی میں غصے کی لہر ابھرنے لگی تھی۔ وہ ضبط سے لب مزید بھینچ گئی۔ یہ تم نے خراب کیے ہیں نا، تو تم ہی ٹھیک کرو گی۔ دانیال نے مٹھیاں بھیجے فرش پر پڑے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ آرزو نے پلٹ کر اس کے کپڑوں کی طرف دیکھا۔ تمہاری خوش فہمی ہے یہ، میں نہیں دھونے والی یہ سب۔ آرزو کھڑے ہوتے تڑک کر بولی، جس پر دانیال نے لہو رنگ آنکھوں سے اس کے وجود کو گھورا۔ شرافت سے انہیں دھو، پھر انہیں پریس کرو اور میرے کمرے میں رکھ کر جاؤ، ورنہ میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا۔ دانیال اس کا بازو دبوچے غرایا تھا۔ آرزو نے پھیلتی آنکھوں سے اس کے تپتے سلگتے چہرے کو ملاحظہ کیا۔ ہرگز نہیں۔ تنزیہ ہنستے وہ دانیال کو آگ لگا گئی تھی۔ دانیال نے شعلہ بار آنکھوں سے اس کی مسکراہٹ کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، یہیں بند رہو گی تم، جتنی دیر تم یہ سب دھو نہیں دیتی۔ وہ لب ایک دوسرے میں سختی سے پیوست کرتے باہر بڑھ گیا۔ آرزو اس کے پیچھے لگ گئی جب وہ باہر سے واش روم کا دروازہ لاک کر گیا۔ دانیال، دروازہ کھولو، تمہیں میں نوکر نظر آ رہی ہوں؟ آرزو کپڑوں کو دیکھتے چیخی باہر۔ وہ بیڈ پر بیٹھے غصے سے پاؤں جھلاتے غصہ قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ اندر بیٹھی آرزو نے گہرا سانس بھرتے بند دروازے کو گھورا۔ جاہل ہو تم! وہ بلند آواز میں چیخی اور ایک شرٹ اٹھا کر اسے دھونے لگی تھی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے بہا۔ آرزو خان نے آہستہ آہستہ کرتے بڑی مشکل سے جیسے تیسے سارے کپڑے دھو دیے۔ آج اسے پتہ چلا تھا کام کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ بار بار آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب ڈیڈ آئیں گے میں انہیں بتاؤں گی تمہارا جاہل آدمی بڈھے کہیں کے۔ آرزو بچوں کی طرح روتے ایک ہاتھ سے آنکھیں صاف کرتے بولی اور پھر آخری شرٹ نچوڑ کر رکھی۔ اس کے وجود پر لپٹی دانیال کی شال بھی کناروں سے بھیگ گئی تھی۔ بکھرے بالوں میں آرزو نے چھوٹے سے شیشے میں اپنا جائزہ لیا۔ کیسے کام والی بنا دیا مجھے، کالا منہ اور تمہارا جاہل!
सू सू करते वो बाल पीछे करते बोली और दरवाजे की जानिब पड़ी। धो दिए तुम्हारे कपड़े, अब फैलाने हैं, बाहर निकालो मुझे, वो जब्त करते बोली। अगर कुछ उल्टा सीधा बोलती तो क्या पता वो बाहर ही ना निकालता। क्लिक की आवाज़ से दरवाज़ा खुले। दानियाल ने धुले हुए कपड़ों को देखा और फिर नम आंखें लिए खड़ी आरजू को, जो जब्त करने के चक्रों में सुर्ख चेहरा लिए उसे देख रही थी। बहुत जल्दी अकल आ गई तुम्हें, लबों पर दिल जला देने वाली मुस्कुराहट सजाते वो आंखों में तंजिया चमक लिए बोला। आरजू ने बस घूर कर उसे देखा। चलो उठाओ इन्हें और ऊपर टेरेस पर फैला कर आओ। वो मोबाइल जेब से निकालते उस पर नजरें जमाते बोला। आरजू ने सुलगते दिल के साथ कपड़े उठाए और बाहर निकल के उसके वजूद पर अब भी दानियाल की शॉल लिपटी हुई थी। वो कमरे से बाहर निकली और वहां से सीधा किचन में गई थी। सब लोग हैरत से उसे देख रहे थे। महा का कहका गूंजा और फिर वो लबों पर दोनों हाथ जमाए सोफे के पीछे छुप गई, वरना शायद आज आरजू उसे मार ही देती। सबके लबों पर मुस्कुराहट थी, दबी दबी हंसी थी। उन दोनों के बदनों की कहानी में घर वाले काफी इंजॉय करते रहते। हैरत थी कि आरजू ने ना किसी को देखा और ना ही किसी को कुछ कहा, हालांकि माहा को उसके कहके पर भी नहीं। सब ने आंखों ही आंखों में सूते हाल के संगीन होने का ऐलान किया। वो सीढ़ियां चढ़ते ऊपर गई थी जहां एक छोटा सा रूम था। वहां से बाहर का काफी अच्छा व्यू आता था। आरजू खान ने जब्त के बंधन हटाते सारे कपड़े जमीन पोस कर दिए। वहां बने कमरे में गई, वहां से पेट्रोल उठाया और कपड़ों पर पूरी गैलन खाली कर दी। दानियाल फोन कान को लगाए सीढ़ियां चढ़ते ऊपर आया था। आरजू खान ने एक नज़र उसे देखा। शाम का वक्त था, आसमान अपनी रोशनी खोते अब अंधेरे में बदल रहा था। खाली टेरेस पर सर्दियों की हवा रूह को मुंजमद करने को काफ़ी थी। तेज़ हवा से आरजू के बाल उड़ते उसके चेहरे पर आ रहे थे। मेरे आगे सब खाक बराबर। वो लबों पर तंजिया मुस्कुराहट सजाए दानियाल को देखते माचिस निकालते उस जलाते कपड़ों पर फेंकी। आग की लपेट ऊपर उठी थी। आरजू का चेहरा आग की रोशनी की वजह से जर्द हुआ, जहां पहले वाला ना खौफ था और ना ही आंखों में नमी। दानियाल ने साकित नज़रों से उसे और फिर जलते हुए खुद के कपड़ों को देखा। आरजू चलते हुए उस तक आई, उसके सामने बड़े नडर अंदाज में खड़ी हुई। आपको क्या लगा मैं नौकरानी हूँ? आप मुझसे हुक्म चला सकते हैं? हरगिज़ नहीं, मैं आरजू खान हूँ, मैं बर्बाद करके खाक में मिला देती हूँ। वो गर्दन मोड़े एक नज़र जलते कपड़ों को देखते बोली थी। दानियाल के सीने में आग भड़की। वो जब्त से मुठ्ठियाँ भींच गया, जब्त से चेहरा सुर्ख पड़ गया। वो मुठ्ठियाँ भींच गया था ताकि कहीं वो आरजू खान पर हाथ न उठा दे। गुस्से के शोले आंखों से उठने लगे थे। आरजू खान उसके पास से होते सीढ़ियाँ उतरती नीचे की जाने पड़ गई, जबकि वो अब भी उस आग को देख रहा था जो उसके अंदर जलती आग से कई दर्जे कम थी। हम साहिबे अना हैं, हमें तंग न कीजिए, मगरूर बेवफा हैं, हमें तंग न कीजिए। हम कौन हैं, कहाँ हैं, इसे भूल जाइए, जैसे भी हैं, जहाँ हैं, हमें तंग न कीजिए। बेहतर है हमसे दूर रहें साहिबे कमाल, हम साहिबे ख़ता हैं, हमें तंग न कीजिए। वो सीढ़ियाँ उतरता नीचे आया था। गुस्से से चेहरा हद दर्जे सुर्ख पड़ रहा था। दानियाल बेटा कहाँ जा रहे हो? उसके धुआं चेहरे को देखते वो उसकी जानिब लपकी। मॉम प्लीज़। वो लब भेजे वहाँ से बाहर निकल गया और फिर अपनी गाड़ी में बैठते वो घर से ही बाहर निकल गया। नूर बेगम ने अफसोस से सर नफ़ी में हिलाया। अभी से ये हाल है, बाद में न जाने क्या होगा। नूर बेगम अफसोस से सर हिलाते बोली, बड़ी अम्मी बाद में धमाके ही होंगे। आली सेब की बाइट लेते बोला तो नूर बेगम ने उसे घूरा। वो कंधे उचका गया। थोड़ी देर पहले आरजू भी ऐसे ही नीचे आई थी और अपने कमरे में चली गई और अब दानियाल बाहर चला गया था। लीजे उठती ऊपर टेरेस पर गई और फिर 5 मिनट बाद नीचे आई। आरजू ने दानियाल के सारे कपड़े जला दिए। लीजे खुद हैरत से बोली। लीजे के जाने के बाद रुखसार बेगम वहाँ आई थी। उसकी बात सुनते उन्होंने माथा पीटा था। या खुदा, कब अकल आएगी इस लड़की को? वो सर पर हाथ मारते अफसोस से बोली थी, जबकि महा हंसते हुए अपने रूम में चली गई। आली भी वहाँ से चला गया। लीजे, रुखसार बेगम और नूर बेगम किचन में चली गई। सफिया बेगम की तबीयत कुछ नासाज थी, सो वो आराम कर रही थी। वो तीनों खाना बनाने लगी थी, साथ में दानियाल और आरजू को डिस्कस कर रही थी। खाना घर की ख्वातीन ही बनाती थी, जबकि फेरोज़ा को बाकी कामों के लिए रखा हुआ था। आरजू तैयार होते बाहर निकली थी। यूनिफॉर्म में मलबूस वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। वो डाइनिंग टेबल पर बैठते ब्रेकफास्ट शुरू कर चुकी थी। उसने सामने नज़रें उठाकर देखा। वो संजीदा चेहरे से ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसके जिस्म पर ब्लैक शर्ट के साथ ब्लू पैंट थी जो बिल्कुल नई लग रही थी। आरजू ने दिल जलाती मुस्कुराहट लबों पर खींची। खुद पर किसी की नज़रें महसूस हो करते दानियाल ने नज़रें उठाईं। सामने ही वो मुँह में ब्रेड का पीस रखते
इस्तेहसा मुस्कुराहट से देख रही थी। दानियाल ने शोला पार नज़रों से उसे देखा और फिर वापस से ब्रेकफास्ट करने लगा। कुछ ही दिन रह गए, तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं? आगा जी नाश्ता करते बोले। सफिया बेगम ने मुस्कुराकर उन्हें देखा। आगा जी, बस सब कुछ ही तकरीबन मुकम्मल है, अब बस लड़कियों की अपनी शॉपिंग रह गई है। मैं सोच रही हूँ 3-4 दिन में वो भी कर आए तो बेहतर है। सफिया बेगम खुश दिली से बोली थी तो आगा जी ने इस बात में सर हिलाया। दानियाल, तुम परसों तक ले जाओ इन्हें। आगा जी के बजाय सफ़ीर साहब ने दानियाल को देखते कहा, डैड, मेरी परसों बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं उससे नेक्स्ट डे ले जाऊँगा। वो अपनी असली संजीदगी से बोला। माहा और आरजू ने एक्साइटेड होकर एक दूसरे को देखा, जबकि आयशा बस सर झुकाए नाश्ता कर रही थी। जबकि मेराज जल्दी ऑफिस चला गया था कुछ ज़रूरी काम की वजह से। आयशा बच्चे, अब आप शादी के बाद यूनिवर्सिटी जाना, लीव ले लो आप। नूर बेगम बेटी को देखते बोली तो वो इस बात में सर हिला गई। आरजू ने आयशा को टोका मारा था, जिस पर आयशा ने घूर कर उसे देखा, और साथ दानियाल ने भी नागवारी से उसे देखा था, जिस पर आरजू ने मुंह बनाया। चलो माहा चले, आरजू उठते हुए बोली। माहा भी हाथ झाड़ते उठ गई, लेकिन अचानक ही उसके जहन में उस शख्स की बातें घूमने लगी थी। वो लबों पर जुबान फेरती घबरा गई थी। क्या हुआ माहा, तबीयत ठीक है? दानियाल ने माहा का अचानक सफ़ेद पड़ता चेहरा देखते इस्तफसार किया। बाकी सब ने भी माहा को देखा। इतनी नज़रें खुद पर जमी देखकर माहा पजल होकर रह गई। जी दानियाल वीर, वो लब काटते बोली। आरजू उसका हाथ पकड़े वहाँ से उसे लिए आगे को बढ़ गई थी। गाड़ी में बैठती खान बाबा ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और माहा उनके हाथों पर बंधी पट्टी को देखकर मजीद सहम की। उसे वो स्याह होंठ बोलते याद आने लगे और उसके जुमले अपने कानों में गूंजते महसूस हुए तो वो हलक दर कर गई। ओके, ख्याल रखना अपना। आरजू माहा के गाल को छूते मोहब्बत से बोली थी। क्योंकि माहा की यूनिवर्सिटी आ गई थी सो वो वहाँ उतर गई। खान बाबा उसे आंखों ही आंखों में तसल्ली देते गाड़ी आगे बढ़ा गए। जब अंदर दाखिल होते माहा खान का वजूद एक बार फिर जलजलों की जिद में आया। उसने गेट के बिल्कुल पास खड़े उस काले साए को देखा। वो फुल ब्लैक कपड़ों में मलबूस था और उसके सर पर पहनी वो हैट अजीब सी वहशत का नजराना पेश करती थी। वो ब्लैक हैट माहा को अपने कदम लरसते महसूस हुए थे। वो पीछे की जानिब बढ़ने लगी और इससे पहले कि वो रोड पर जाते किसी हादसे का शिकार बनती, सामने खड़े वजूद ने तेजी से लंबे लंबे डग भरते उसका हाथ थामा। मैं खड़ा तो हूँ तुम्हारी मौत की सूरत सामने, फिर पीछे जाकर मरने का क्या जवाब? वो एक हाथ लॉन्ग ब्लैक कोट की जेब में डाले बोला था। माहा की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। वो काली आंखें खौफ से फैलाई उसे देख रही थी। चले, वो माहा का हाथ छोड़ते बोला। माहा ने खौफ से कपकपाते वजूद से उसे देखा। कहाँ? वो अटकते लहजे में बोली। मुकाबिल का चेहरा उस पर आया नहीं था। कब्रिस्तान, शहर खामोशा। वो आहिस्तगी से उसकी जानिब झुकते बोला। माहा को एकदम अपनी सांसें कम होती महसूस होने लगी। उसके लहजे में पूरी इसरारी सी थी। नहीं। माहा ने फिर से पीछे की जानिब कदम लिए, जिस पर अलेक्जेंडर ने उसका हाथ फिर से जकड़ा। लगता है तुम्हें बहुत अच्छा लगता है जब मैं तुम्हें छूता हूँ। उसका सफ़ेद हाथ अपने ग्लव्स पहने हाथों से पकड़े वो आहिस्ता मगर सर्द आवाज़ में बोला। माहा ने तेज़ी से उसका हाथ झटका। क्या हुआ मैडम, सब ठीक है? सिक्योरिटी गार्ड उसकी जानिब आते बोला। माहा ने कुछ कहने को लब वाह किए कि अलेक्जेंडर ने उसका हाथ मजबूती से जकड़ते दबाया था। माहा आंसू जब्त करती नफ़ी में सर हिला गई। ये मेरी होने वाली बीवी है, अलेक्जेंडर ने माहा का हाथ सहलाते दूसरी नज़र गार्ड पर डालते कहा तो वो सर इस बात में हिला गया। अजीब पुरस्रार बंदा है। गार्ड नफ़ी में सर हिला गया। माहा ने उससे अपना हाथ छुड़वाया। तुमने निकाह का बोला था ना, मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ तो फिर निकाह करें, वरना वैसे भी मुझे कोई इश्यू नहीं है, वो आम से लहजे में बोला। माहा ने फैली आंखों से उसे देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम्हें जिससे बदला लेना है उनसे लो, मुझसे नहीं। अब जाओ यहाँ से, माहा मजबूत लहजे में बोली, लेकिन फिर भी उसका लहजा लड़खड़ा गया था। अलेक्जेंडर ने अबरू उचका कर उसे देखा, जैसे माहा देख ही नहीं पाई। बहुत जुबान चलने लग पड़ी है तुम्हारी लड़की, बदला तो तुम्हारे ज़रिए ही लूँगा। और शराफत से कल 10 बजे मुझे इधर मिलना, मैं लेने आऊँगा तुम्हें, वरना मैं तुम्हारे घर भी आ सकता हूँ। और फिर मैं वो करूँगा कि पूरे मोहल्ले क्या पूरे शहर में तुम मुँह छुपाती फिरोगी। वो सर्द बर्फीले लहजे में बोलता माहा को लर्जा गया था। माहा ने सहमती नज़रों से उसे देखा। वो सीटी बजाता वहाँ से आगे को बढ़ गया, जबकि माहा जैसे साकित सी नहीं खड़ी रह गई। उसका जिस्म शल होने लगा और दिमाग माऊफ। वो किसे सब बताती। आंखों से आंसू टूट कर गिरा। अचानक उसका मोबाइल फ़ोन बजा था। उसने मोबाइल बैग से निकालते स्क्रीन को देखा।
مجھ سے بھاگنے کی یا کسی کو کچھ بھی بتانے کے عوض میں تمہارے منہ سے نکلے ہر لفظ پر تمہارے گھر کے ایک فرد کی جان تحفے میں دوں گا۔ ویسے مجھے تحائف زیادہ پسند نہیں، امید ہے تم میری پسند کا خیال رکھو گی۔ دل دہلا دینے والا میسج تھا۔ ماہا نے بھی ساختہ دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ کئی لمحے اسکرین کو گھورتی رہی، اس کا سانس بکھرنے لگا تھا۔ اس نے خان بابا کو کال کی تاکہ وہ گھر جا سکے، کیونکہ اتنے شدید خوف میں وہ یونیورسٹی تو ہرگز نہیں جا سکتی تھی۔ تھوڑی دیر میں خان بابا واپس آئے۔ وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی، درخت کے ساتھ ٹیک لگائے وجود کے لبوں پر آج دوسری بار مسکراہٹ ابھری اور آنکھوں میں شفقت بھری چمک۔ ماہا نے کھڑکی سے دیکھا اور اسے درخت کے ساتھ کھڑے دیکھ کر وہ سانس روکی۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں، گاڑی دور ہوتی جا رہی تھی اور اس کا وجود بھی، لیکن اس شخص کی باتیں، وہ باتیں ماہا جمشید خان کو اپنی قید میں لے رہی تھی۔ یار آرزو، کہاں غائب تھی تم؟ بریک ٹائم میں بیٹھے مروہ نے آرزو کو خفگی سے دیکھتے پوچھا۔ تمہارے اس کرش نے جینا حرام کر دیا تھا، ایسا کرو اٹھا کر لے جاؤ اسے، ہمیں نہیں چاہیے۔ آرزو لیس کھاتے بولی۔ اس کے لہجے میں بیزاریت تھی اور مروہ اس کی بات سنتے ہنستی۔ پاگل، کل تم نے اتنی امپورٹنٹ انفارمیشن مس کر دی، مروہ ایکسائٹڈ سی بولی تھی۔ آرزو نے ابرو اٹھا کر پوچھا، ساتھ لیس منہ میں رکھا۔ ہائے، پرسوں سے نا ہمارے کالج میں کمپٹیشن ہو رہے ہیں یار، ہمارا کالج ایسا میزبان ہوگا، ہم لوگ حصہ لیں گے اور پاس کے کالج کے اسٹوڈنٹس بھی آئیں گے۔ ٹیم کی صورت، مروہ ہاتھ آگے کرتی بولی کہ آرزو اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار سکے، جبکہ آرزو نے کوف سے منہ بگاڑا۔ تو آرزو آنکھیں گھماتے بولی تو مروہ نے اسے گھوڑا۔ کیا مطلب؟ تو یار موبائل لے کر آنے کی اجازت بھی ہے اور ساتھ پاس والے کالج سے ٹیمز آئیں گی، تمہیں پتہ تو ہے وہاں کو کلاسز ہوتی ہیں۔ مروہ ہنسی دباتے بولی۔ موبائل کا سن کر آرزو بھی پرجوش ہوئی۔ سچ؟ آرزو لیس کو چھوڑے اب مروہ کو دیکھتے بولی۔ ہاں نا یار، میں کسی کمپٹیشن میں حصہ نہیں لے رہی، آرام سے انجوائے کروں گی۔ مروہ چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھتی بولی۔ ہائے، میں تو موبائل لے کر آنا چاہتی تھی شروع سے یار، کالج میں پکس لینے کا کتنا مزہ آتا ہے۔ آرزو اٹھتے ہوئے بولی۔ مروہ نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ کیا پتہ وہاں تمہیں کوئی پسند کر لے؟ مروہ نے منہ پر ہاتھ جماتے کہا، جس پر آرزو نے اسے گھورتے ہوئے دیکھا اور پھر ہنس دی۔ پاگل، ابھی کالج کلیئر نہیں ہوا اور تجھے پسند کی باتیں سوچ رہی ہیں؟ تم اپنی نظریں قابو میں رکھنا ورنہ میں اشر بھائی کو بتا دوں گی۔ آرزو منہ بناتے اسے وارننگ دیتے بولی تھی، جس پر مروہ نے اس خفگی سے دیکھتے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ دونوں اپنی کلاس میں انٹر ہو گئیں کیونکہ بریک ختم ہو چکی تھی اور اب انہیں پڑھنا تھا، اور چھٹی کے وقت تک آرزو کا منہ پھول گیا۔ مروہ اسے دیکھتے ہنس رہی تھی، لیکن اسے خود بھی ٹینشن تھی کیونکہ سر نے اٹھا کر 2 چیپٹر فزکس کے دے دیے تھے اور آرزو کو اپنی ساری خوشی کونے میں نظر آئی، جبکہ ٹیسٹ کسی بری بلا کی طرح اس کے سر پر سوار۔ خان بابا کے آنے پر وہ گاڑی میں بیٹھی۔ 2 منٹ بعد ہی مروہ کی گاڑی بھی آ گئی اور وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو ہاتھ ملاتی خدا حافظ بولتی گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ کیا ہوا ماہا، ٹھیک ہو تم؟ آرزو کالج سے آتی سیدھا اس کے کمرے میں داخل ہوتے بولی، کیونکہ ماہا صبح سے ہی گھر لوٹ آئی تھی اور طبیعت خرابی کا بہانہ بنا دیا تھا۔ ہاں بس طبیعت تھوڑی خراب ہے، ماہا لبوں پر زبان پھیرتے بولی تھی۔ آرزو نے اس کی خوفزدہ آنکھوں میں جھانکا۔ مجھے تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے، تم مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہی نا ماہا؟ آرزو نے ابرو اچکاتے استفسار کیا۔ ماہا نے غائب دماغی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم کیوں آ گئی ہو یہاں؟ جاؤ کپڑے چینج کرو، ہمیشہ شرارتیں ہی کرتی رہتی ہو تم۔ اٹھو، چلو نکلو میرے روم سے۔ ماہا آرزو کا بازو پکڑے زبردستی اسے اپنے کمرے سے باہر نکالنے لگی، جبکہ آرزو منہ کھولے اس کی بے تکی سی باتیں سننے لگی۔ لیکن ماہا یار، میں نے کیا کیا؟ آرزو آنکھیں پھاڑے اس کے چہرے کو دیکھتے بولی، جس نے دھکے دے کر آرزو کو کمرے سے باہر نکال دیا تھا اور اس کے منہ پر دروازہ بند کر لیا۔ آرزو اب بھی حیرت سے آنکھیں پھاڑے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا اسے۔ آرزو کندھے اچکاتے وہاں سے باہر نکلی، کیونکہ اس نے ٹیسٹ بھی تیار کرنا تھا، سو اپنا سر جھٹکی۔ کمرے میں جاتے وہ اپنی کتاب اٹھائے باہر نکلی اور اب آرزو خان پورے گھر میں چکر کاٹتے رٹا لگانے میں مصروف تھی۔ ویسے آرزو باجی، رٹے سر کٹا علی صوفے پر بیٹھتے بولا تو آرزو نے اسے گھورتے منہ بنایا۔ تم منہ بند رکھو اپنا بدتمیز۔ آرزو منہ بگاڑے بولی۔ علی کندھے اچکا گیا۔ کیوں لڑتی رہتی ہو ہر وقت؟ رخسار بیگم پیچھے سے آتی اسے ڈانٹنے لگی تھی۔ آرزو نے پلٹ کر ماں کو دیکھا۔ ماما، یہ علی دیکھو کیا بول رہے، پتہ نہیں اس گھر کے مکینوں کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے، جلتے ہیں سب مجھ سے۔ آرزو نے ہنکار ابھرتے بالوں کو پیچھے کی جانب جھٹکا۔ رخسار بیگم نے اسے غصے اور افسوس سے گھورا۔
एक वो है सड़ियल, पता नहीं क्या मसला है उसे मुझसे। चेक करवाएं मामा उसे डॉक्टर से, मुझे तो लगता है उसका ऊपर वाला मामला खाली होगा। आरजू अपनी कनपट्टी पर हाथ रखते उसे बजाते बोली। रुखसार बेगम ने गुस्से से उसे आंखें दिखाई थी। आरजू तमीज़ से बात करो। रुखसार बेगम ने उसके सर पर चपत रसीद करते उसे घुरका। रहने दे छोटी अम्मी, बददिमाग लोगों के पास कौन सा दिमाग है जो वो तमीज़ से बात करें। वो सीढ़ियाँ उतरते आग लगाते लहजे में बोला। आरजू ने पलट कर उसे देखा। वो बाकी दिनों के मुकाबले में आज कुछ ज़्यादा ही पुरकशिश लग रहा था। ब्लैक कुर्ता पहने, कंधों पर मर्दाना शाल ओढ़े, हाथ में बंधी महंगी घड़ी और बाजू कोहनियों तक फोल्ड किए उसकी मर्दाना वजाहत झलक रही थी। आरजू ने फौरन हिसाब बेबाक करते उसे देखते दिल पर हाथ रखते उपकाई आने जैसी शक्ल बनाए उसे चिढ़ाया और वहाँ से बाहर लॉन में चली गई। रुखसार बेगम ने दानियाल के जबड़े भेजे चेहरे को देखा। वो नफी में सर हिलाती वापस किचन में चली गई और दानियाल घर से बाहर निकल गया। क्या बना? मरवा ने उसे टोका देते पूछा, जिस पर आरजू हलक तर करते नफी में सर हिला की। बोल भी दो, घंटों से यूं ही गूंगी बनी बैठी है। मरवा अब जिद चोते बोली। आरजू ने फिर से नफी में सर हिलाया। यार उस एटम न्यूक्लियर के सवालों को देखकर बस मेरे जहन में एक ही न्यूक्लियर आ रहा था, दानियाल सफ़ीर खान। मेरा टेस्ट बहुत ख़राब किया है। पता नहीं सर ने भी बहुत इंसल्ट की। कह रहे थे अभी प्रिंसिपल को बताता हूँ, घर से बुलाते हैं आपके। आरजू रोनी सूरत बनाए बोली। मरवा लब दबा गई। उसका टेस्ट फिर भी कुछ ठीक हो गया था। मरवा ने माथा पीटा। यार तुम बहाना ही कर लेती कोई। मरवा अफसोस से बोली, साथ दोस्ती के नाते कंधे पर हाथ रखते हौसला भी दिया। दिमाग कहाँ चल रहा था उस वक्त, पता नहीं क्यों रखवाई ये साइंस मुझे, और ऊपर से नॉन मेडिकल। मैं बता रही हूँ मैं फेल होगी तो मेरा कोई कसूर नहीं है। आरजू घुटनों के गिर्द बाजू बांधते सर उन पर रखते बोली, साथ आंखों में नमी तैर की। आरजू आपको प्रिंसिपल बुला रहे हैं। हेड गर्ल आरजू को देखते बोली, जिस पर आरजू ने आंखें फैलाए मरवा को देखा। पता नहीं कौन आया होगा, मम्मा मेरी यहीं बेइज्जती करना शुरू हो जाएंगी। आरजू वहाँ से उठती हेड गर्ल के साथ उसके पीछे चलने लगी। वो उसे प्रिंसिपल रूम के बाहर छोड़ते खुद वहाँ से चली गई। आरजू ने चेहरे पर मासूमियत सजाई, खुद को रिलैक्स करने को गहरा सांस फिजा में खारिज किया। प्रिंसिपल सर में आई कमी? आरजू दरवाजे में खड़े बोली। इजाज़त मिलने पर वो अंदर दाखिल हुई और फिर आरजू खान का हलक तक कड़वा हो गया जब प्रिंसिपल के सामने वाली चेयर पर उसने सुर्ख चेहरा लिए बैठे दानियाल को देखा। आरजू ने अफसोस से ऊपर देखा, जैसे अल्लाह से कह रही हूँ बस ये होना बाकी था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते आगे बढ़ी। कई बार मुझे आपकी शिकायत मिल चुकी है, लेकिन मैं इग्नोर करता आया हूँ क्योंकि मैं आपकी फैमिली को जानता हूँ। लेकिन ये क्या हरकत है मिस आरजू? अगर आपने नहीं पढ़ना तो घर बैठे यहाँ आकर हमारा एकेडमिक रिकॉर्ड मत ख़राब करें। प्रिंसिपल भड़क कर बोले। आरजू सर झुकाए ज़मीन को तक रही थी। उसे दुनिया जहाँ की बेइज्जती कबूल थी, लेकिन दानियाल खान के सामने हुई ज़रा सी इंसल्ट भी उसे कबूल नहीं थी। देखो दानियाल, प्रिंसिपल ने दानियाल की जानिब उसका आज और बाकी कई पुराने टेस्ट बढ़ा दिए जिसे वो लब भेजे देख रहा था। सर प्लीज़ आप किसी और को बुला लेते, ये मेरे वालिद साहब नहीं हैं। दानियाल के लबों पर उभरती इस्तेज़ा हंसी को देखते आरजू प्रिंसिपल को एक नज़र देखते बोली। उसकी इस अचानक बात पर दानियाल दांत कचकचाते उसे देखने लगा। आरजू बिहेव योरसेल्फ। दानियाल उसके टेस्ट पर गिरफ्त सख्त करते बोला। आरजू ने घूरते हुए उसे देखा। प्लीज़ सर, अगर आपने इन्हें मेरे टेस्ट देखने के लिए बुलाया है तो मैं कोई जवाब नहीं दूंगी। आरजू का मुश्किल नम आंखों में आंसू कैद करते बोली। दानियाल सफ़ीर खान की इस्तेज़ा मुस्कुराहट अब भी उसका दिल जला रही थी और आरजू की बात सुनते दानियाल का खून खोलने लगा था। वो सख्ती से टेस्ट टेबल पर रखते आगे बढ़ा और आरजू की बाजू दबोच गया। प्रिंसिपल हैरत से उन्हें देख रहे थे। सकलैन साहब, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। दानियाल मुश्किल मुस्कुरा पाया था, वरना जो इज्जत अफजाई आरजू दानियाल की यहाँ कर चुकी थी उस सिचुएशन में तो दानियाल बस आरजू खान को यही गार्ड देने का इरादा रखता था। वो उसका बाजू दबोचे बाहर निकला। क्लासेस होने की वजह से वहाँ स्टूडेंट्स ना होने के बराबर थे। ऑफिस रूम के साथ बने वेटिंग रूम में लाते उसने आरजू को पढ़ा। तुमने तमीज़ है आरजू खान, या मैं ये समझो तुम एक छोटी बच्ची हो जिसे बस अपनी ही करनी होती है? हर वक्त तुम जानती हो तुम क्या बोल रही थी वहाँ? वो गुस्से से मुठियाँ भींचे शोला टपकाती नज़रों से आरजू को देखते बोला, जो नम आंखों से उसे देख रही थी। तो किसने कहा था यहाँ आने को? मैंने कहा था मत आया करे वहाँ जहाँ मैं होती हूँ। क्यों हंस रहे थे आप? गुस्से से बोलते बोलते आरजू की आंखों से आंसू फिसल कर उसके चेहरे पर गिरने लगे थे। वो बार बार पलकें झपकाने लगी। दानियाल ने लब सख्ती से एक दूसरे में प्योस्त किए। दफ़ा हो जाए यहाँ से। वो लब भींचे सू सू करते बोली। दानियाल आंखें नीचे गुस्सा काबू करने की कोशिश करने लगा।
किसने कहा था तुम्हें साइंस रखने को, हाँ, जब पढ़ा ही नहीं जाता तुमसे? दानियाल सख्ती से बोला। आरजू ने उसके चेहरे की जानिब देखा। मामा कह रही थी साइंस आसान है, मुझे क्या पता था, मुझसे नहीं पढ़ा जाता, मुझे नहीं पढ़ना। वो रोते हुए बोली। उसकी गहरी हेज़ल आंखों में अजीब सा तलसम था। तीखी नाक फुलाते वो सर को नफी में हिलाते बोली थी। दानियाल ज़ेरे लब मुस्कुरा गया। यही पहली बार था जब वो दानियाल सफ़ीर खान आरजू खान की वजह से मुस्कुरा पाया था। पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा आरजू खान, अपना ये दिमाग पढ़ाई में लगाओ तो ज़्यादा बेहतर है, हर वक्त शरारतों और ज़ुबान दराजी में लगाती हो। वो उसके माथे के वस में अपनी उंगली रखते बोला। आरजू ने चौंक कर उसे देखा। वो आंखें फाड़े उसे देख रही थी। दानियाल ने अपनी उंगली हटाई और बाहर निकल गया। आरजू ने उसकी पुश्त को घूरा। तुम क्लास में जाओ, मैं प्रिंसिपल से बात कर लेता हूँ। वो पलट कर उसे देखते बोला। आरजू इस मरतबा खामोशी से वहाँ से निकल गई और क्लास की जानिब बढ़ गई, जबकि दानियाल प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ। मैम, गाड़ी में बैठ जाएं। हैरी गाड़ी का दरवाज़ा खोले बोला। माहा ने सहमती नज़रों से ब्लैक गाड़ी को देखा और 2 कदम पीछे हट गई। नहीं, मुझे नहीं जाना। माहा नफ़ी में सर हिलाते बोली। उसकी आंखों में खौफ फैलने लगा। मैम प्लीज़ गाड़ी में बैठ जाएं, सर ने भेजी है गाड़ी। हैरी सर झुकाकर एक मरतबा फिर से बोला। माहा ने नफ़ी में सर हिलाया और आगे की जानिब बढ़ गई। कम ऑन बटरफ्लाई, गाड़ी में बैठो वरना। मोबाइल पर उभरते मैसेज ने माहा की रूह को झिंझोड़ा था। उसकी आंखों में नमी फैल गई और चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा। मैम प्लीज़, हैरी ने एक बार फिर से कहा था। माहा लरसते वजूद के साथ गाड़ी में बैठ गई। उसकी हथेलियाँ पसीने से तर हुई, माथे पर भी पसीने के कतरे नमूदार हुए। कहाँ ले जा रहे हो? माहा नम आंखों से लड़खड़ाते लहजे समेत बोली थी। हैरी खामोश रहा और फिर सारे रास्ते माहा पूछती आई, चीखती आई, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोला था। थक हार कर माहा रोने लगी थी। उसकी सिसकियाँ गाड़ी में गूंजने लगी। गाड़ी एक आलीशान घर के सामने रुकी थी। हैरी ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। माहा खौफ से सहमते गाड़ी से उतरी। उसका दिल किया यहाँ से भाग जाए। हर जगह आदमी ही आदमी थे जो गन और राइफल से लबरेज खड़े थे। माहा खौफ से आगे बढ़ी। उसके कदम आगे बढ़ने से इनकारी हो रहे थे। घर में दाखिल होते उसने सामने सोफे पर विराजमान शख्स को देखा। वही हुलिया, वही होलनाक हुलिया। माहा 2 कदम पीछे हुई। वो उल्टे कदमों वहाँ से भाग जाना चाहती थी। कोशिश भी मत करना बटरफ्लाई उड़ने की, वरना मैं तुम समेत सबके पर काट दूंगा। वैसे भी आज हमारा निकाह है, मतलब ख़ास दिन। अलेक्जेंडर हाथों को माहम जोड़े बोला। माहा ने कपकपाते वजूद से उसे देखा। जाओ उस रूम में, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। वो एक कमरे की तरफ इशारा करते बोला। माहा ने नफ़ी में सर हिलाया था। कमरे में जाओ बटरफ्लाई, वो सर तरीन लहजे में बोला। माहा लड़खड़ाते कदमों से उस कमरे में चली गई। उसे अपना दिमाग माउफ होता महसूस हुआ था। ठीक 2 मिनट बाद ही वो कुछ आदमियों को लिए अंदर दाखिल हुआ। माहा के सर पर अब वो ब्लैक शॉल थी जो उसने थोड़ी देर पहले कंधों पर फैलाई हुई थी। काश वो आज असाइनमेंट जमा करवाने यूनिवर्सिटी आती ही ना, और अगर वो घर आ जाता या वो बाकी किसी को मार देता। माहा दिलो जान से कांपी थी। काजी साहब ने निकाह पढ़वाना शुरू किया, जबकि माहा खान वो तो सुन होते दिमाग के साथ वहाँ मौजूद थी। उसका जहन खाली था। उसने खाली जहन के साथ अलेक्जेंडर को कबूल किया था। और फिर काजी साहब ने अलेक्जेंडर से भी पूछा, जिसने ऐसे जवाब दिया जैसे एहसान कर रहा हो वो माहा जमशेद खान पर। काजी साहब, कासिम और बाकी आदमी वहाँ से चले गए। माहा गुमसुम बैठी थी। पता ही नहीं चला कब आंखों से आंसू बहने लगे। होश तो तब आया जब एक सुलगते लम्स ने उसके चेहरे को छुआ था। वो गहरा सांस भरते उसे देखने लगी, जो लबों से उसके आंसू चुन गया। माहा की आंखों में खौफ फैल गया। वो पीछे की जानिब खिसकी। रो क्यों रही हो? हाँ, अब से तुम वही करना जो मैं कहूँगा, और ज़्यादा सवाल जवाब मत करना, मुझे पसंद नहीं। वो उंगली उठाते बोला। माहा लब भेज की। मुझे घर जाना है, वो रोते हुए बोली। उसे लगा पल में उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, वो तबाह हो गई है। सामने बैठे शख्स ने सर से हैट उतारी। माहा ने पहली बार उसके चेहरे को देखा। हेज़ल ग्रीन आंखें, अनाबी स्याह लब, बिखरे बाल, मगरूर नाक। बिलाशुबा वो बहुत हसीन था, और वो ठीक करता था जो आंखों को छुपा कर रखता था। वो आंखें किसी का भी चैनो करार लूट सकती थी। वो साकित सी हो गई। बटरफ्लाई, इतनी जल्दी है मुझसे दूर जाने की? वो लबों पर साइड स्माइल रखते बोला। और माहा ने जैसे कमरे में तलसम उतरते पाया था। वो लबों पर खिंची मुस्कुराहट सहर तारी करती थी। निकाह मुबारक। उसके कमर में हाथ डलते वो साकित अंदाज में बैठी माहा को अपनी जानिब खींचते बोला। माहा ने अपनी कमर पर उसकी उंगलियां प्योस्त होती देखी। मुझे घर जाना है। तलसम टूट गया। माहा को अब वो कोई हैवान लग रहा था जिसके साए तने माहा खान कैद थी। वो अटकते लहजे में बोली,
वो माहा खान के लबों पर अपनी उंगली जमाते चेहरा उसके चेहरे के करीब कर गया। माहा सांस रोकी। तुमने कहा था मैं तुम्हें छू सकता हूँ। उसकी आंखों में चमक उभरी। वो मोहब्बत की चाह की चमक नहीं थी, वो सर्द सफाकत भरी बदले की आग की चमक थी। नहीं। वो उसकी गिरफ्त में मचल कर रह गई, जबकि अलेक्जेंडर ने बड़ी सफाकत से उसके लबों को अपने लबों की कैद में लेते कतरा खुद के अंदर मौजूद जहर को माहा खान के अंदर उतारा। माहा को उसकी जरहाना गिरफ्त में अपना दम घुटता महसूस हुआ था, जबकि अलेक्जेंडर के हाथ उसे अपनी कमर के अंदर धंसते महसूस हुए। वो उससे दूर होते उसे देखते एक आंख दबा गया। माहा गहरे सांस भरती उसे शशदर चेहरे से देख रही थी। उसने अलेक्जेंडर से ऐसे फेल की तवक्को नहीं की थी। अब आते हैं बदले की तरफ। वो अपने लबों पर आए माहा के लबों के खून को अंगूठे से साफ करते बोला। यकदम उसके चेहरे पर सर्द तासुर छा गए। माहा की आंखों से आंसू टूट कर गिरने लगे थे। पहला झटका मिलेगा तुम्हारी उस माँ को, वो लब दबाए बोला। माहा ने रोते हुए नफी में सर हिलाया। जब अलेक्जेंडर ने बुरी तरह उसका बाजू खींचते उसे उठाया। नहीं प्लीज़, माहा से सख्ती भी बोली। अलेक्जेंडर ने पलट कर उसे देखा। मैं जो कहूँगा वो करोगी, वो ज़रा झुकते बोला। माहा की हाइट उससे कई दर्जे कम थी। उसकी हेजल ग्रीन आंखों में वहशत दौड़ गई। माहा रोते हुए इस बात में सर हिला गई। गुड गर्ल, माई लिटिल बटरफ्लाई, वो मुस्कुरा कर बोला, लेकिन उसकी मुस्कुराहट भी उसकी तरह सर थी। ओके, घर जाओ और फिर घर पहुंचकर मुझे मैसेज कर देना। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, इकलौती बीवी हो तुम मेरी। वो इकलौती पर जोर देते बोला। उसके कंधों पर हाथ जमाते वो मुस्कुराया था। माहा होले से लरस की बैकबोन में सरसराहट सी दौड़ गई। जाओ हैरी, तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ देगा, वहाँ से तुम घर जाना। वो सुगार कोट से निकाले उसे सुलगाते बोला। माहा वहाँ से पलट गई। वो बस किसी तरह वहाँ से निकल जाना चाहती थी, जबकि अलेक्जेंडर के लबों पर पुरस्रार मुस्कुराहट थी। न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन उसके चेहरे से लग रहा था उसके इरादे खतरनाक थे। शादी की तैयारियां अरूज पर थी। कल आरजू के कॉलेज में भी कंपटीशन स्टार्ट होने वाले थे। वो उदासी चेहरे पर सजाए घर लौटी थी। सबकी शॉपिंग मुकम्मल थी, सवाई माहा और आरजू के, जिन्हें दानियाल ने लेकर जाना था। आगा जान, ये आप क्या बोल रहे हैं? दानियाल यकदम उठते बोला। आगा जी ने सख्ती से उसे बैठने का इशारा किया था। वो लब नीचे बैठ गया। तुम जानते हो इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं दानियाल, तुम आरजू से निकाह कर लो, वैसे भी शादी तो तुम्हें करनी ही है अब। आगा जी संजीदगी से बोले। दानियाल ने बाप को देखा जो खामोश बैठे थे, जिसका साफ मतलब था वो इस फैसले पर राजी थे। आगा जान, वो बददिमाग लड़की है ना, उससे तमीज़ है ना ही पहनने का ढंग, उसे बस अपनी करनी होती है, मेरा उसके साथ गुजारा मुश्किल है। दानियाल मुठियाँ भींचे बोला। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा दानियाल, वो सब समझ जाएगी, तुम जानती हो उसकी ज़िंदगी पर ख़तरा है। आगा जी उसे समझाने किसी अंदाज में बोले। दानियाल जबड़े भींच गया। आरजू खान से शादी, उफ़, वो तो मर कर दोबारा जिंदा हो जाता, तब भी ऐसा ना सोचता। दानियाल, मुझे शर्मिंदा मत करो, मैं शहीद से वादा कर चुका हूँ, तुम आरजू का ख्याल रखोगे? आगा जी यासीद से बोले। दानियाल ने सर हाथों में गिराया था। वो क्या करता उस लड़की का जो उससे बदला लेती थी? दानियाल सफ़ीर खान और आरजू खान बहुत अलग थे, वो दोनों इकट्ठे हरगिज़ नहीं रह सकते थे। ठीक है आगा जान, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे निकाह के साथ ही रुखसती चाहिए। मेरे और आरजू के मामलात में कोई नहीं बोलेगा, ना मैं किसी को जवाब दे हूँ। वो अटल लहजे में बोला तो आगा जी मुस्कुरा उठे। हमें मंजूर है, वो मुस्कुरा कर बोले। तो दानियाल वहाँ से उठते बाहर निकल गया। बाबा, आपको क्या लगता है इस तरह आरजू महफूज रहेगी? कब से खामोश बैठे जमशेद साहब ने किसी सोच के तहत कहा। हाँ, मुझे यकीन है जमशेद, दानियाल कभी अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने देगा। आगा जी अटल अंदाज में बोले थे। दोनों भाइयों ने इस बात में सर हिलाया, ये जाने बगैर कि अगर आरजू खान ही ना मानी तो। यार, वो देखो कितना हैंडसम लड़का है, मरवा चहक कर बोली। आरजू ने आंखें छोटी करते उसे देखा। शर्म हया कर लो बदतमीज़। उसने लड़के की जानिब एक नज़र डाली। वो वाकई गुड लुकिंग था। आज उनके कॉलेज में मुकाबलों का पहला दिन था, जहां आज मुख्तलिफ मौज़ों पर तकारीर होनी थी। अब बस करो, ऐसे मत घुरो से। आरजू उसका बाजू खींचते चलने लगी थी। मरवा ने बुरा सा मुँह बनाया था जब उन लड़कों के पास से गुजरते आरजू का बैलेंस पाँव के नीचे आने वाले प्लास्टिक वाटर की बोतल से बिगड़ा और वो ज़मीन बोस होती। उससे पहले उस लड़के ने उसे थाम लिया था जिसके बारे में वो दोनों कुछ देर पहले बातें कर रही थी। आरजू शिद्दत से आंखें मीच गई नीचे गिरने के खौफ की वजह से, जबकि मरवा मुंह पर हाथ जमाए हैरत से उन्हें देख रही थी। कई स्टूडेंट्स भी हैरत से उन्हें उस अंदाज में देखने लगे और फिर दबी दबी हंसी उनके चेहरों पर उभरी। आप ठीक हैं?
उस लड़के ने आरजू को सीधा करते उसके कंधों पर हाथ रखते इस्तफसार किया। आरजू ने आंखें खोले, तेज होती धड़कनों के साथ उसे देखा। जी। वो पहली बार लड़खड़ा गई थी। शायद इतने लोगों की खुद पर जमी नज़रों के बाइस या ज़मीन पर गिर जाने के डर से लड़के ने मुस्कुराकर उसे देखा। ध्यान से मिस। वो थोड़ा आगे झुकते बोला। आरजू लब भेज की। अब वहाँ से कई स्टूडेंट जा चुके थे। मरवा हंसी दबाते उसे वहाँ से ले गई, जबकि पीछे उस लड़के ने मायने खेज नज़रों से आरजू की पुश्त को देखा। काम हो गया। वो लड़का अपने ग्रुप के दूसरे लड़कों के पास जाते बोला जिन्होंने इस बात में सर हिलाया था। गुड, अब मज़ा आएगा। वो 4 लड़के हंसे और वहाँ से चले गए। मरवा ने आरजू की बाजू को टोका दिया। क्या फिल्मी सीन बना यार, मरवा हंसते हुए बोली, जबकि आरजू ने उसे आंखें दिखाई। मैं घर जा रही हूँ, मुझे शॉपिंग पर जाना है। आरजू मुंह बनाते आगे को बढ़ गई और फिर कॉलेज गेट क्रॉस करते जाकर गाड़ी में बैठ गई, जहाँ महा डरे सहमे सर झुकाए बैठी थी। आरजू को वो कुछ दिनों से अजीब सी लग रही थी। ना ठीक से खा रही थी, ना ही कोई बात उससे शेयर कर रही थी। बल्कि जब 1-2 बार आरजू उससे मिलने आई तभी माहा ने उसे कमरे से निकाल दिया। आरजू ने खामोशी से गाड़ी ड्राइव करते दानियाल को देखा। उसे बेसाख्ता ही कुछ देर पहले वाला वो मोमेंट याद आया था। दिल की धड़कनें यकदम ही बढ़ गई। वो सर झटक गई। ये सूट नहीं करेगा तुम पर बटरफ्लाई। माहा ने चौंक कर आसपास देखा। वो बाजू सीने पर बांधे दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा था। माहा की आंखों में खौफ लपका और ड्रेस हाथ से छूटता जमीन पर गिर गया। वो बाला, उसमें तुम बला की हसीन लगोगी, आई स्वेयर। वो ऑरेंज और ब्लैक कंट्रास्ट की नेट की फ्रॉक की जानिब इशारा करते बोला। माहा ने पीछे की जानिब कदम बढ़ाए थे, जहाँ शॉप की दूसरी जानिब आरजू अपनी शॉपिंग कर रही थी। भागने की कोशिश बेकार है, चलो ड्रेस लो, मुझे तुम्हें इसमें देखना है। वो लब दबा कर बोला। उसकी हेजल ग्रीन आंखों में चमक उभर गई। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें बटरफ्लाई, ड्रेस लो। इस मर्तबा वो ज़रा गुस्से से बोला था। माहा ने फ़ौरन कांपते हाथों से वो ड्रेस उठा ली, गले में गिरती सी उभर कर मासूम हुई। माहा। आरजू ने माहा के कंधे पर हाथ जमाया। माहा ने चौंक कर उसे देखा था। माहा का जिस्म कपकपा उठा। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? यहाँ गुमसुम क्यों खड़ी हो? आरजू ने चौंकते हुए पूछा। माहा ने पलट कर देखा, वहाँ अब कोई नहीं था। दिल के तहा खानों में खौफ कुंडली मारे बैठ गया था। वो शख्स क्या वाकई कोई बला था जो पल में नजर आता और पल में गायब हो जाता? कुछ नहीं, चलो चले, मेरी शॉपिंग हो गई है। माहा ने ड्रेस लेते आरजू से कहा, जो हंकार उभरते बाहर निकल गई, जहाँ दानियाल उन लोगों का इंतज़ार करा था। उन्हें आता देखकर वो चलने लगा। आरजू भी अपने बैग संभालती चल रही थी, जबकि माहा भी गायब दिमागी से इधर उधर देखते चल रही थी। जब एक पिलर के पास उसे फिर से अलेक्जेंडर नजर आया, माहा की आंखें खौफ से फैल गई। वो तेज़ी से आरजू के साथ होती चलने लगी थी। टांगों से जैसे जान निकलती महसूस हो रही थी। उफ़ अल्लाह, क्या मुसीबत है पड़ना। आरजू सर पकड़े बोली। वो लोग कुछ देर पहले ही घर पहुंचे थे। दानियाल तो ऑफिस वापस चला गया, जबकि माहा रूम में थी। इधर आरजू किताबों में सर दिए बैठी थी। या खुदा, मेरी भी शादी करवा दे, कम से कम इस पढ़ाई से मेरी जान छूट जाएगी। आरजू सर ऊपर उठाए दुआ करते बोली। लीज़े उसे देखते हंस दी, जबकि आयशा ने उसे घूर कर देखा। बाजी जी, अगर आपके शोहर ने कहा कि आपको पढ़ना है तो? आली सोफे पर बैठते बोला। तो आरजू ने गुस्से से दांत पीसते उसे घूरा। मनहूस मारे, जब भी बोलते हो गलत ही बोलते हो। आरजू हंकार उभरते बोली। आली कंधे उचका गया। आपको शादी करनी है? आगा जी की आवाज़ पर आरजू ने जुबान तांतों तले दबा कर पीछे की जानिब देखा। वहाँ बैठे कई लोगों के चेहरों पर साया सा लहराया, शायद अगले लम्हे का सोचकर। रुखसार बेगम, नूर बेगम, सफिया बेगम और सफ़ीर साहब भी वहाँ चले आए। नहीं वो आगा जान, मैं तो बस। आरजू किताब टेबल पर ही रखते खुद उठते शर्मिंदगी से बोली। आगा जान ने उसे हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया। वो सर झुकाए चलते उनके पास सोफे पर टिकी। वैसे मैं यही बताने आया हूँ, मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है तुम्हारा इंटर क्लियर करने के बाद। आगा जी उसके सर पर हाथ रखते बोले। आरजू का दिल तेज़ी से धड़का था, जबकि बाकी सब खामोशी से उसे देख रहे थे। जानना चाहो कि किसके साथ? आगा जी फिर से गोया हुए। आरजू ने नज़र उठाकर उन्हें देखा। दानियाल के साथ। आगा जी मुस्कुरा कर बोले। कमरे से बाहर निकलती माहा ने ये सुनते लबों पर हाथ जमा लिया, जबकि लीज़े भी मुंह खोले आरजू के रफ्ता रफ्ता सुर्ख पड़ते चेहरे को देखने लगी, जहाँ अब मुस्कुराहट नहीं थी बल्कि वहाँ एक हैरत का जहाँ आबाद था। दानियाल? हैरत की इंतहा को पहुँचते उसके लबों से आज़ाद हुआ। वो लब भेज की। हाँ दानियाल, हम सब का यही फैसला है।
آغا جی آرزو کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھے بغیر پھر سے بولے۔ آرزو خان یکدم اٹھ کھڑی ہوئی۔ رخسار بیگم نے پریشانی سے بیٹی کو دیکھا اور یہی حال باقی سب کا بھی تھا۔ آغا جان، مجھے آپ کے ہر فیصلے کی عزت ہے، لیکن یہ نہیں، میں دانیال سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اگر آپ میری شادی کسی راہ چلتے فقیر سے بھی طے کر دیتے تو میں کر لیتی، لیکن دانیال سفیر خان ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں۔ وہ لب بھینچے بولی۔ اس کا چہرہ ضبط کرنے کے باوجود سرخ پڑ رہا تھا۔ اس کی بات سنتے آغا جی نے تیوری چڑھائی۔ کیوں؟ آخر کیا مسئلہ ہے دانیال میں؟ اور دوسری بات، لڑکیاں یوں منہ اٹھا کر اپنی شادی کے بارے میں نہیں بولتی۔ آغا جی صوفے سے اٹھتے روبدار لہجے میں بولے تو آرزو ضبط سے سر جھکا گئی۔ آغا جان، بے شک لڑکیوں کو وہ شادی موت لگ رہی ہو، آپ جانتے ہیں دانیال سفیر خان اور آرزو خان سکے کے دو الگ پہلو ہیں، اور ویسے بھی دانیال خود بھی نہیں مانے گا۔ آرزو سر جھکائے بولی۔ اس کی آواز لڑکھڑا گئی تھی، دل بند ہونے لگا۔ وہ مان گیا ہے آرزو، اور اب میں چاہتا ہوں تم بھی مان جاؤ، ورنہ مجھ سے یا گھر کے کسی افراد سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ مجھے شام تک تمہارا فیصلہ چاہیے۔ آغا جی غصے سے وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی سفیر صاحب ان کے پیچھے گئے، جبکہ رخسار بیگم آرزو تک آئی۔ کیا خرابی ہے دانیال میں آرزو، اور کس طرح تم زبان درازی کر رہی تھی آغا جان کے سامنے؟ رخسار بیگم اس کا کندھا جکڑے اس کا رخ اپنی جانب کرتی سخت غصے میں بولی۔ مما، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ آرزو خان دانیال خان کو پسند نہیں کرتی؟ زہر لگتا ہے وہ مجھے۔ وہ نظریں اوپر اٹھاتے بولے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، جن میں نمکین پانی تیر رہا تھا۔ وہ آنکھیں رگڑتی باہر نکلی۔ وہ کالج یونیفارم میں ہی نکل گئی، بغیر شال لیے۔ ٹیسٹ یاد کرنے کے چکر میں اس نے چینج بھی نہیں کیا تھا، اور اب اس کے گلے میں بس ایک پٹی تھی۔ رخسار بیگم نے یاسین سے اس کی پشت کو گھورا۔ خان بابا دانیال کے آفس چلیں۔ وہ آنسو ضبط کرتے بولی۔ خان بابا سر جھکاتے گاڑی میں بیٹھ کے پھر سارے راستے آرزو نے خود کو مضبوط بنانے کے جتن کیے۔ نہ ہی اب اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور نہ ہی وہ انہیں لانا چاہتی تھی۔